Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very cheerful morning to one and all. Honorable judges, respected teachers, my fellow competitors, and the audience. Today, we have gathered over here to deliberate on a topic that holds profound implications for the development of our society. As we embark on this critical discourse, let us heed the words of Eleanor Roosevelt, who remarked, "Freedom makes a huge requirement for all human beings. With freedom comes responsibility." Social media has undoubtedly become an inseparable part of modern life, especially for students. While social media platforms provide incredible opportunities for communication, connection, learning new skills, discover content, stay updated with the latest news, they also have the potential to hinder the personality development of students. And it has been a subject of concern. This topic has sparked intense debate, and recent research sheds light on the various ways in which excessive use of social media can negatively impact the personality development of students. Its heaviest usage can be seen among those aged 15 to 30 years, particularly the college-going students. Excessive use of social media can lead to various health problems, and prolonged screen time can result in digital eye strain and poor eyesight. Continuously sitting in the same position and scrolling through social media can result in a decreasing of physical activity, which may lead to bad body posture. According to a survey, 74.7% of the social media usage occurs before bed, and 90% of the young adult aged 18 to 25 experience reduced quality of sleep. One of the most pressing concerns is the potential for social media to contribute to the development of addictive skills among students. Constant exposure to idealized images and curated versions of others' life can create unrealistic standards for themselves, causing them to be dissatisfied with their own lives and personalities. Feedbacks and comments on social media can induce anxiety and cause anger issues. Moreover, the culture of comparison fostered by social media can contribute to the erosion of students' sense of identity and individuality. As said by Stephen Furtick, the reason we struggle with insecurity is because we compare our behind the scenes with everyone else's highlight reel. Research published in Journal of Social and Clinical Psychology found that the more time individuals spend on social media, the more they compare themselves with others and the worse they felt about their lives. The culture of comparison can hinder the healthy exploration of students' personality and healthy exploration of students' healthy personality. Uh, as my competitors said, and they know that social media is very useful for entertainment. But on the name of entertainment, today's children are watching porn videos, they are watching bad videos, they are watching video full of abusing words. And according to a survey, research published in Journal of Social and Clinical Psychology, it says that the suicide rate has increased by 30%, coinciding with the similar increase in the social media usage. Another concerning aspect of social media's impact on personality development is the potential for cyberbullying. Cyberbullying can have serious and long-lasting impact on personality development. Social media can distract students from focusing on their studies, projects, extracurricular activities, and necessary soft and hard skills. In the world of algorithms, hashtags, and followers, know the true line of human connection. While social media platforms provide opportunities for connection and self-expression, they also have the potential to, they also have the negative impact on the mental health and cyberbullying, and it cannot be overlooked as students are in a crucial stage of their development. I would like to conclude my topic by remembering the timeless wisdom of Mahatma Gandhi, who urged, "Action expresses priorities." Thank you and have a very great day. ये ईस्टर्न रो में जो बैठे हैं बच्चे, ये ऑडियंस, प्रॉपर ऑडियंस की भूमिका नहीं निभा रहे। वो आगे आए और इस वेस्टर्न रो में बैठ जाएं। वो पीछे एक जगह गैदर होके, असेंबल होके कुछ और काम कर रहे हैं। आगे आइए। पार्टिसिपेंट्स,
Akash Kumar come to speak against the motion. आदरणीय निराग मंडल, अध्यापकगण और इस प्रांगण में उपस्थित मेरे सभी साथियों, आज सभी को मेरा प्रणाम। विषय है सोशल मीडिया युवाओं के व्यक्तित्व विकास में बाधक। देखिए, किसी भी समय काल परिस्थिति में कोई भी नई तकनीक या नई चीज़ आती है तो उसका दो असर पड़ता है, एक उसका लाभ होता है, एक हानि होता है। उससे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, एक बुरा प्रभाव पड़ता है। वो हमें डिसाइड करना है कि उसका कैसे यूज करना है। व्यक्तित्व विकास के दो प्रमुख तत्व हैं, आत्म अनुशासन और आत्म परीक्षण। सोशल मीडिया पे अगर हम गूगल पे ये सर्च करते हैं कि हाउ टू डाउनलोड पुष्पा 2 मूवी इन HD, तो ये गलत इस्तेमाल है। अगर वहीं गूगल पे हम ये सर्च करते हैं डॉक्टर अंबेडकर बुक वेटिंग फॉर वीज़ा फुल बुक, अगर उसको सर्च करके पढ़ते हैं तो ये अच्छी बात है, उसका अच्छा इस्तेमाल है। सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और यूट्यूब पे कितने सारे मीम्स वीडियो हैं, अगर हम वो देखते हैं तो गलत इस्तेमाल है। अगर हम गूगल पे यूट्यूब पर ही अलग पांडे सर, डॉक्टर विकास विकृति सर, इनसे पढ़ते हैं, इनसे क्लास लेते हैं तो उसका रचनात्मक उपयोग होता है, उसका कुछ अच्छा उपयोग होता है। और सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। हमें आत्म अनुशासित रहते हुए, अपने आप का आत्म परीक्षण करते हुए उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कुछ चीज़ें सही भी हैं, गलत भी हैं, लेकिन हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। हमें अपना स्थान जो ऊपर करना है, तो उसके लिए हमें अच्छी चीज़ें जो हैं उनको ग्रहण करनी है, और जो खराब चीज़ें हैं उनको नहीं देखना है, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत धन्यवाद। मोहम्मद जलाल आ जाइए। हर एक काम से पहले मैं ये काम करता हूँ, हर एक काम से पहले मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कागज के ये महक ये नशा रूठने को है, कागज के ये महक ये नशा रूठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। मोहतरम हज़रात और हकम साहिबान, आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबकती डिबेट में मेरा मौजू है सोशल मीडिया तलबा के शख्सियत के इर्तिका में रुकावट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में अपने एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी के लिए कुव्वत गोयाई अता की है, जिसके जरिए वह अपने माफी ज़मीर को अदा करता है। कदीम ज़माना में बल्कि माजी करीब में भी दूर दराज से राबता की शक्ल आपसी मुकादबत और खुतूत नवैसी ही थी। यह बहुत बड़ी नेमत थी। दस्ते कुदरत की फैयाजियाँ हजरत इंसान पर हर आन हर लम्हा होती रहती है। मुवासलाती निज़ाम से जिद्दत तराजियाँ अपना जलवा बिखेर रही हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और स्नैप वगैरह की कसरतों बहुतात है। इसके मुस्बत इस्तेमाल से इंसानियत खातिर खा मुस्तफीद भी हो रही है, मगर मदारिस, स्कूल और कॉलेज के तलबा के शख्सियत के इर्तिका में सोशल मीडिया का किरदार हद दर्जा मनफी है। इससे तलबा के अंदर जहनी, फिक्री, अमली सुस्त रवि का रुझान ही फरोग पा रहा है। दरसो तदरीस, तालीम और ताल्लुम और ज्ञान की गति ठप पड़ जाती है और शिक्षा का आदान प्रदान रुक जाता है। आज के छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में मल्टीमीडिया मोबाइल होता है, जिसकी वजह से पबजी, फ्री फायर, एड बॉल और करंग से लगवा बेकार और बेहयाई के कामों में मस्त रहते हैं। इस तरह की सरगर्मियों से नौखेज़ तलबा के अंदर किस्म किस्म की खराबियां और अखलाक सोजी के वाकयात पैदा होते हैं।
आज के इस पुरफेतन दौर में जहाँ तालीमी पसमादगी और बेइतनाई की असबाब इल्ल जुदागाना हो सकती है, इस पर बहसो मुबाहिसा तबसरे की मुस्तकिल गुंजाइश है। सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल तालीमी इर्तिका की राह का दुश्वार कुन रोड़ा है, ज़वाल व इन्हितात के ताबूत का आखिरी कील है। आज से 15-20 साल पहले फोश व तस्वीर, अखलाक सोच वीडियोस और बेहयाई के मनाजिर का हुसूल काफी हद तक दुश्वार और मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आजकल मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर के बटन को हल्का सा टच करने से ये सारे मनाजिर आंखों के सामने आ जाते हैं। हम इस मौजू पर मजहबी नुक्ताए नजर से गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर वक्त की तंग दामानी हायल है, इसलिए मारूजी तजजिया पेश करने पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मोहतरम हज़रात, हकम साहिबान और मेरी प्यारी बहनों, आज के इस मसरूफियत से लबरेज जिंदगी में गैर मेयारी अशियाए खुर्दनी से जहाँ जिस्मानी नशोनुमा में गैर मामूली पस्ती दर आई है, सोचने समझने की सलाहियतें पसमुर्दा हो रही है। अगर तलबाए अजीज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे तो तालीमी मैदान में कैसे आगे बढ़ेंगे। आज हम देख रहे हैं कि 8 साल के बच्चे वीडियो पे मस्त रहते हैं, 10 साल के बच्चे जिनको अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए या फुर्सत के लम्हात खेल कूद में सर्फ करते हैं, जिससे उनकी जिस्मानी, ज़हनी और फिक्री परवरिश होती। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी वगैरह में रहते हैं, मगर अफसोस कि ये बच्चे इस तरह की सरगर्मियों से अपने को मसरूफ नहीं रखते, बल्कि सोशल मीडिया का बेदारी इस्तेमाल करते हैं, जो तलबा की तरक्की की राह में रुकावट बनती है। वहीं उससे गैर मामूली वाबस्तगी बच्चों को अपने रस्मों रिवाज, खानदानी तहजीब सकाफत और मशरकी रिवायात से आरी और कोसों दूर कर देगा। फिर यह बच्चे जो काम के मुस्तकबिल इंसानियत के मेहमान हैं, हालात के चलते दस्ते बुर्द के शिकार हो जाएंगे। फिर यह हमारे लिए सुदमन के बजाय बाइस ज़हमत होंगे। इसलिए मेरा मुद्दा शुरू से यही है, सोशल मीडिया बच्चों की तालीमी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इससे आगे बढ़कर मैं ये बात भी मानता हूँ, सोशल मीडिया से वाबस्तगी, रोशन और मुस्तकबिल की जमानत क्या, या तो उनकी तबाही बर्बादी का पेशखाना भी साबित हो सकती है। हाँ, एक बात इख्तितामिया के तौर पर यह कहना मुफीद समझता हूँ, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए तबाकुन तो है, मगर हाई एजुकेशन में इसके मुस्बत असरात से इनकार नाइंसाफी होगी। इसलिए बहसो तहकीक और रिसर्च के लिए गैर मतबूआ किताबों और मखतूतात तक रसाई और इससे खातिर का इस्तेफादा में सोशल मीडिया का रोल इल्मी पेशरफ्त में संग मील की हैसियत रखता है। डिजिटल लाइब्रेरी ऑनलाइन क्लासेस का जीता जागता मजहर है। मैं अपने मुद्दे को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। हैरत है कि तालीमों तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीमों तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही क़ुरा से हुआ था। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स शशांक शेखर। गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गविंद्राधिरूणम गुणातीतरूपम भवम भास्वरम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवत्रम। परम आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण व मेरे सभी प्रतिभागियों, मैं शशांक शेखर कक्षा 9 का छात्र आज यहाँ आप सभी के समक्ष सोशल मीडिया किस प्रकार से युवकों के जीवन के व्यक्तित्व विकास में बाधक नहीं है, इस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोरोना काल जैसे समय में सोशल मीडिया ने छात्रों के शिक्षा प्रणाली में बहुत ही बड़ा योगदान निभाया। जो अभी जो हमारे भाई एवं बहन आए और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया छात्रों के व्यक्तित्व विकास पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जो जैसे यूट्यूब, जैसे एक भाई ने हमारे कहा कि उस पर बैड वीडियोस आते हैं जिसे छात्र देखकर उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। मैं उनके जवाब में कहना चाहूँगा कि उसी यूट्यूब पर अलग सर, ओझा सर की क्लासेस भी आती हैं, उसी यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस भी आते हैं जिससे हमारा मानसिक विकास होता है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनसे हम बोलचाल की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
व्यक्तित्व विकास का अर्थ होता है खुद का विकास, यानी कि संस्कार, शारीरिक, बोलचाल आदि। सोशल मीडिया से हमारा व्यक्तित्व विकास होता है, क्योंकि सोशल मीडिया के वेबसाइट्स से हम बोलचाल सीखकर अपनी बोलचाल में विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आ जाएं। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल तआला व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़अहिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हकम साहिबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत कर सकते हैं, साथ ही तालिब इल्मों तक पहुँच सकते हैं और बहुत सारी हैरत अंगेज़ चीज़ अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इस लुत्फ़ के दरमियान कुछ मनफी नताइज भी हैं, मसलन लत, खुलफशार, बदसलूकी वगैरह। सच तो ये है कि सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसानात भी हैं। सोशल मीडिया के नुकसानात की फहरिस्त इसके फ़वाइद के बनिस्बत ज़्यादा है। नौजवानों में फ़ाहिशी व उरियानी फैलाना दुश्मन कौमों का मकसद रहा है। उनकी इस मकसद की तकमील के लिए सोशल मीडिया एक अहम हथियार साबित हो रहा है। दूर बैठे अहबाब से रब्ता तो आसान बन चुका है, लेकिन करीबी ताल्लुकात से दूर होते चले गए हैं। बिना सोचे समझे तस्वीर वगैरह शेयर करने के कई नुकसानात सामने आ चुके हैं। बेमकसद शोहरत और ज़्यादा लाइक्स हासिल करने के चक्कर में इस्लामी व अखलाकी इक़्तिदार को रौंदा जाता है। नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो शेयर करके कई गुनाहों का इर्तिकाब किया जाता है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कल्चर भी सोशल मीडिया के रहने मन्नत है। हजरात, ये अक्तल का हकीकत है कि सोशल मीडिया की बदौलत खुदकुशी को फ़रोग़ मिला है। एक सर्वे के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट शेयर की गई कि हाइड्रोजन सल्फाइड के ज़रिए बआसानी खुदकुशी की जा सकती है। थोड़े ही अरसे बाद 220 लोगों ने इस तरीके से खुद को मारने की कोशिश की, जिनमें से 208 कामयाब भी हुए। इसके अलावा झूठी खबरों की तशहीर, धोखाधड़ी, जाली अकाउंट्स, हैकिंग और ब्लैकमेलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात में सोशल मीडिया के बुनियादी किरदार हैं। असल हाजिर का अक्सर नौजवानों का काहिल, सुस्त, तन आसान और जहनी व फिक्री तौर पर पस्त होना सोशल मीडिया के नशे की वजह से है। सोशल मीडिया ने गुज़िश्ता बरसों में ज़बरदस्त तरक्की की है। तरक्की पजीर ममालिक से लेकर तरक्की याफ्ता ममालिक तक हर कोई सोशल मीडिया की ताकत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ताहम फ़वाद हासिल करने में हम इतनी जल्दी करते हैं कि इससे होने वाले नुकसान को देखने में नाकाम रहते हैं। नौउम्र अफराद इस इस्तेहक़ाक़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये मुताला के वक्त और दोस्तों और ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ात को मुनासिबत तौर पर मुतासिर करता है। हम ज़ेल में इन नुक़्तों पर बहस करेंगे जो बतौर तालिब इल्म सोशल मीडिया के नुकसानात हैं। तालिब इल्म के लिए सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये उनके ज़हनी खुलफशार का बड़ा ज़रिया है। एक तालिब इल्म की सबसे अहम चीज़ ये है कि मुताला में इन्हमाक और यकसोई हो। इसके बग़ैर हम खातिर खा उलूम से फ़ायदा नहीं उठा सकते, और सोशल मीडिया की मौजूदगी में यह बात बिल्कुल महाल है कि एक तालिब इल्म किताबों और मज़ामीन में यकसोई के साथ दिलचस्पी ले सकें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर 1 घंटा स्क्रॉल करने के बाद एक तालिब इल्म को कम अज़ कम उतना ही वक्त अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करने में लगता है। इसलिए इसमें वक्त की ज़िया और तालीमी दिलचस्पियों से क़तई ताल्लुक़ के सिवा कुछ नहीं। माहिर तालीम के तजुर्बों की रोशनी में एक तालिब इल्म को कम अज़ कम 8 घंटों की नींद लेना ज़रूरी है, ताकि दिमागी फ़अलियात को बरकरार रखा जा सके, और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सूरत में यह नामुमकिन है। सोशल मीडिया की वजह से तलबा एक दूसरे से मुनासिब ताल्लुकात नहीं रख सकते, क्योंकि बात करने के बजाय तालिब इल्म एक मतन भेजता है जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, और इससे सूरत हाल ख़राब हो सकती है। सोशल मीडिया में खुलेआम रुसवाई होती है, जिससे तालिब इल्मों में डिप्रेशन, कम खुद एतमादी पैदा होती है, और ये रुझान तलबा में बेचैनी और ख़ुदकुशी की सोच परवान चढ़ा सकती है। सोशल मीडिया की नशा व नौइयत की वजह से तलबा उतना ज़्यादातर औकात वह सर्फ करते हैं जिससे उनकी तालीमी सरगर्मियाँ कम होती है और उनके ग्रेड में गिरावट आती है।
जब से सोशल मीडिया नया ट्रेंड बन गया है, गुफ्तगू का मेयार भी गिरता चला जा रहा है। तलबा बड़े और छोटों के दरमियान आदाब गुफ्तगू को बालाए ताक रख कर गुफ्तगू करने का आदी हो चुके हैं। गलत मालूमात सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैल सकती है, जो तालिब इल्मों में गुमराह कुन और नाकिस मालूमात का सबब बनती है। सोशल मीडिया का एक नुकसान यह भी है कि तलबा में मनशियात और शराब की लत लग सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो मनशियात को प्रमोट करते हैं। इसलिए मुझे ये बात कहने में कोई बात नहीं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक तालिब की शख्सी इर्तिका में ज़हर हिलाल से कम नहीं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। सोशल मीडिया तलबा की शख्सियत के इर्तिक़ा में रुकावट। मैं इस मौजू की मुखालिफत में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहता हूँ कि सोशल मीडिया के बारे में ये जो गलत अफवाह फैलाई जाती है, ये जो गलत प्रचार किया जाता है कि इससे तलबा की शख्सियत के इर्तिक़ा में रुकावट पैदा होती है, ये शरअन गलत है हज़रात। जबकि हकीकत तो ये है कि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तलबा के ही हक़ में किया जाता है हज़रात। अव्वलन इस वजह से कि ये आलमी पैमाने पर मुख्तलिफ अक़वाम व नज़रियात तक पहुँच बनाता है, इससे जहन खुलता है और एक तालिब इल्म वसीउल मशरिब हो जाता है। उसके अंदर से तंग नज़री दूर होती है और वो मुखालिफ अफ़कार व नज़रियात को भी समझ कर सब्र के साथ अपनी हिकमत अमली तय करता है। और फिर वह अपने ख़यालात का इजहार भी इसी सोशल मीडिया के ज़रिए आलमी बिरादरी तक पहुँचाता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक अच्छे माहौल की तामीर करता है हज़रात। इस माना में सोशल मीडिया और इसकी शख्सियात के नशोनुमा में इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करता है और एक आलमी राब्ता पैदा करने का ज़रिया होता है हज़रात। सानियन ये कि लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म जो तलबा को उसकी सलाहियत का इजहार करने पेशावर अफराद के साथ जुड़ने और पेशावराना ऑनलाइन मौजूदगी क्रिएट करने के चांस प्रोवाइड करते हैं, पैदा करने के मौके फराहम करते हैं, जो तलबा के कैरियर पर मबनी पहलुओं को बढ़ाता है। और इस तरह से भी सोशल मीडिया से तलबा की महारत में इजाफा होता है हज़रात। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तलबा को तख्लीकी तौर पर इजहार ख्याल करने की जगह फराहम करता है, ख्वाह तहरीर, आर्ट या दीगर शक्लों के ज़रिए उनकी मुनफरद शख्सियात व खुसूसियात के नशोनुमा में मुआविन है और इस तरह वह इजहार और ख्याल तख्लीक करने का बेहतरीन ज़रिया है हज़रात। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तलबा एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हैं और उसमें वह हम उम्र, हम ख्याल और अनजाने अफराद के साथ जुड़ जाते हैं और एक अच्छा वक्त गुजारते हैं। वह अपने ताल्लुक़ के एहसास को फ़रोग़ देते हैं और इस तरह से उनकी समाजी तरक्की पर मुस्बत असर पड़ता है। वह एक ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, वह एक ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटी की तामीर करते हैं जो मजहब, ज़ात पाक, रंग नस्ल से परे होते हैं और इस तरह वह बैनुल अक़वामी बिरादरी का एक हिस्सा बन जाते हैं हज़रात। तलबा का मामला तालीम से वाबस्ता है और सोशल मीडिया तालीमी मवाद के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है जो तलबा को तालीमात और वसाइल के एक वसी रेंज तक रसाई हासिल करने के काबिल बनाता है, जो उनके फ़िक्र और इल्म नशोनुमा को बढ़ा सकते हैं हज़रात। यूट्यूब पर मौजूद निसाबी लेक्चर और ऑनलाइन एजुकेशन इसकी बेहतरीन मिसाल है, जिसका तजुर्बा हमने माजी में करीब कोरोना के ज़ेर असर किया था हज़रात। एट द लास्ट वी नीड टू नो, हमें यह जानना होगा कि आज के मौजूदा दौर में, आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल में महारत एक काबिल कदर महारत है। इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर दी स्टूडेंट, ये तलबा के हक़ में मुफीद साबित हो सकता है। और अगर आज का तालिब इल्म एडवांस टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा? आज के मौजूदा दौर को देखते हुए और मुस्तकबिल की ज़रूरतों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज के दौर की एक अहम ज़रूरत है हज़रात।
आज जो लोग इस मौजू की मुखालिफत करने आए हुए हैं, इस सोशल मीडिया को गलत बता रहे हैं, वो लोग भी अपनी स्पीच को, अपनी तहरीर को इसी सोशल मीडिया के ज़रिए तैयार करके आए हुए हैं। हज़रात, ये कैसी बात हुई? आप खुद उसका सहारा ले रहे हैं और फिर उसको गलत ठहरा रहे हैं। आज इस माहौल में ये भी हो रहा है, जो लोग इसको सही साबित कर रहे हैं और जो गलत साबित करने भी आए हुए हैं, वो लोग भी अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और उस वीडियोज़ का इस्तेमाल वो व्हाट्सएप के जरिए करेंगे। क्या व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं है? हजरात, ये गलत ऐसी बात हो गई कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ये कैसी बात हो गई हजरात? मुंदजिल 12 पॉइंट्स को हम ये बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक बहुत अहम ज़रूरत है और तलबा हमारा मुस्तकबिल है। तलबा की रूहानी, जिस्मानी, जज्बाती और मजहबी गैर हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वेबसाइट मौजूद है जिससे तलबा को ना सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहिए बल्कि तलबा को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस बुनियाद पे मैं इस मौजू की मुखालिफत में अपना वोट देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगला नाम है, प्यारे बच्चों बड़ा धैर्य बनाए रखा आपने। अब बस 3 पक्ष में है और 3 विपक्ष में है, तो मुश्किल से 30 मिनट का कार्यक्रम और बचा हुआ है। अगला नाम है मोहसिना अली। मोहसिना अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जाने दो तराजू में कि पल्ला किसका भारी है, तो जाने दो तराजू में कि पल्ला किसका भारी है। तुम्हें तलवार प्यारी है, हमें झनकार प्यारी है। तुम्हें तलवार प्यारी है, हमें झनकार प्यारी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। लेकिन वो तो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें क्या चुनना है। हमें कौवे की तरह नहीं, हंस की तरह बनना है, क्योंकि कौवा अच्छाई में भी गंदगी ढूंढता है और हंस गंदगी से भी मोती चुन लेता है। विषय बहुत संजीदा है, ऐसे में जी चाहता है कि मैं मंच के उस ओर खड़ी हो जाऊं और विषय की पैरवी करके खूब तारीफें पाऊं। लेकिन महोदय, मैं जानती हूँ कि वक्त की नज़ाकत को नज़रअंदाज कर नहीं सकते, ऐसी मेरी फितरत नहीं। आदरणीय सम्मानित निर्णायक मंडल, सम्मानित गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, सोशल मीडिया छात्रों के व्यक्तित्व विकास में बाधक विषय के पक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी कि सरफरोशी की तमन्ना बनकर ही रह जाती है और 3 तलाक लिखकर तलाक की रस्म भी यहाँ ऑनलाइन हो जाती है और वसुधा को कुटुंब मानने वाले लोगों की उंगलियां महर सिमट कर रह जाती है। और कहने को तो ये ज़िंदगी ऑनलाइन है लेकिन ये ज़िंदगी मोनोपोलेशिया का शिकार बना जाती है। अध्यक्ष महोदय, सदन की सम्मति में हाथ लहराते हुए अपने प्रतिपक्षी मित्रों से एक बात कहना चाहूँगी कि हर एक तराशे हुए बूट को देवता न कहो। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्षी मित्र युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का एकमात्र माध्यम सोशल मीडिया को मान बैठे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बढ़ गई या घट गई है दुनिया, मेरे ही नक्शे कदम से कट गई है दुनिया। और कहने को तो ये ज़िंदगी ऑनलाइन है साहब, लेकिन ये दुनिया चंद मुट्ठी में सिमट गई है। महोदय, वर्ष 2008 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 से पहले गैंगरेप जैसे शब्द का, लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन वर्ष 2008 के बाद लगभग रोज ये देखने को मिलता है कि गैंगरेप का कॉन्सेप्ट अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका है। और मुझे नहीं लगता कि किसी माँ बाप ने अपने बेटे को ये बैठकर बताया होगा कि ये गैंगरेप क्या होता है। ये गैंगरेप उसी सोशल मीडिया की देन है जिसकी वेबसाइट पर बच्चे गंदे वीडियोस देखकर बड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आज सोशल मीडिया अपने प्रचंड दौर से गुजर रहा है। जिसे देखो वह अपने फ़ोन पर 2x2 की स्क्रीन पर हाथों को चलाते हुए नजर आता है। और तो और महोदय, सोशल मीडिया पर जो घटनाएं फैलाई जा रही हैं ऑलमोस्ट 90% रॉन्ग होती है।
सड़क पर चलते हुए जो इंसान कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर दूर भाग जाता है, वो व्हाट्सएप पर पाकिस्तान को धमकाता हुआ नजर आता है। और तो और महोदय, जिस इंसान ने आज तक अपने मोहल्ले में कभी गिल्ली डंडा का खेल तक नहीं जीता हो, वह फेसबुक पर विराट कोहली को ये बताता हुआ नजर आता है कि उसे क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए। और तो और महोदय, मोहल्ले का 10वीं फेल रामलाल ट्विटर पर भारत के वित्त मंत्री को जीएसटी बिल पर कोसता हुआ नजर आता है। मान्यवर, मैं बात करना चाहूंगी, वर्ष 2009 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में टोटल 297 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गई थी जिस पर हिंसा हुई थी, लेकिन वहीं वर्ष 2009 की रिपोर्ट के अनुसार वो घटनाएं बढ़कर 300 से पार चली गईं। उसी के महज 8 बरस बाद इन घटनाओं का आंकड़ा बढ़कर 12,797 हो गया, जिसमें से 5600 तो बस इस बात की थी कि किसी ने किसी धर्म के खिलाफ सांप्रदायिक पोस्ट डाल दी थी। और तो और महोदय, सोशल मीडिया पर जो घटनाएं फैलाई जा रही हैं, उसी का मैंने आज सिर्फ जिक्र कर दिया है कि अगर ये सोशल मीडिया इतना खतरनाक नहीं होता तो सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश घटनाओं पर सरकार को प्रतिबंध क्यों लगाना पड़ता है? ताकि असामाजिक तत्व आगे बढ़कर अधिक घटनाओं को विस्तार से अंजाम ना दे पाए। और तो और महोदय, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुए किसान आंदोलन पर सरकार को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था ताकि हिंसा दंगा ज़्यादा ना बढ़े। एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, जिससे कि कई ही विद्यार्थियों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, जो कि हमारी समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। वास्तव में यदि हमें परिवर्तन लाना है, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि माना मेरे प्रतिपक्षी मित्रों के दांत बड़े जहरीले हैं, लेकिन हमको भी सांपों के मंत्र अच्छी तरह से आते हैं। जय हिंद, जय भारत। Now, Tasneem Fatma, please come to speak against the motion. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक जी, मुख्य अतिथि एवं श्रोतागण, मैं तस्नीम फातिमा आज के इस विषय में सोशल मीडिया छात्रों के व्यक्तिगत विकास में बाधक के विपक्ष बोलने के लिए आमंत्रित हूँ। महोदय, आज का दौर वह दौर है जब बच्चा अंगूठा चूसने से पहले अंगूठा चलाना सीखता है। आज का दौर वह दौर है जब दूध के दांत वाले बच्चे से लेकर 90-95 साल के बूढ़े व्यक्ति भी सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आते हैं। महोदय, हमारे भारतीय संस्कृति में स्वस्ति वाचन मंत्र की पहली पंक्ति है, ओम मानवंद्र कर्तव्यंतु विशुद्धा उद्दादशी प्रताशिप दद, जिसका अर्थ होता है संसार में जहाँ कहीं भी कल्याणकारी विचार उत्पन्न हो उसे अपनी ओर आकर्षित करें। और सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो उन कल्याणकारी विचारों को हमारे ओर ले आता है। महोदय, जरा याद कीजिए, जब उत्तराखंड की प्रचंड तबाही में ये सोशल मीडिया तलबगारों की मददगार हाथ बन गई थी, तो कभी केरल की त्रासदी में युवाओं के साथ चल रही थी, तो कभी ओडिशा के सुपर साइक्लोन में मानवता की ढाल बन गई थी। अरे ये वही सोशल मीडिया है। जब संपूर्ण संसार कोरोना की महामारी में दरस था, तो आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति और हमारे बीच इस अवसाद भरी घड़ी में एक बेड़ा बना। उस अवसाद भरी घड़ी में जब शिक्षा हासिल करने के सारे दरवाजे बंद हो गए थे, तो किसी भी वक्त किसी भी छात्र को किसी भी शिक्षा या ज्ञान के लिए किसी भी शिक्षक का दरवाजा न खटखटाना पड़ा, बल्कि अपने मोबाइल फोन से यूट्यूब और गूगल की मदद ली। और जो मेरे मित्र सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम समझते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये केवल मनोरंजन और आमोद प्रमोद का माध्यम ही नहीं, बल्कि युवा के सहयोग और भागीदारी का भी माध्यम है। जैसे कि शॉर्टकट में प्रसिद्धि पानी हो या राजनीति में भागीदारी, व्यवसाय के इस स्तर से लेकर विज्ञापन के उस प्रचार तक, वो मोदी जी की मन की बात से लेकर संदीप मसीह जी की मोटिवेशनल वीडियो तक, निर्मला के लिए जस्टिस की मांग से लेकर रानू मंडल के लेटेस्ट वर्जन से बॉलीवुड तक की इंक्रीमेंट का सफर सोशल मीडिया के जरिए तय पाया है। मैं सोशल मीडिया का समर्थन करती हूँ और पूछना चाहती हूँ विपक्षी वक्ताओं से कि कैसे कितने लोग होंगे जो दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करते होंगे। यकीनन इनका जवाब होगा शून्य। तो जनाब, पहले खुद को आंका जाए फिर दुनिया को ताका जाए, पहले खुद को आंका जाए
है। महोदय, सोशल मीडिया एक माध्यम है और माध्यम को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि युवा जो समाज में अपनी पहचान ढूंढ रहा है, हाशिया पे खड़े वह लोग जो समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं, वेद गुरु जी के वे लाल जो मंच में पर मौका नहीं मिलने के कारण कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वरदान है सोशल मीडिया। और हाल ही में उत्तराखंड में दिवाली के दिन से सुरंग में फंसे 400 मजदूर जो 17 दिन तक उस सुरंग में रहे, उनके लिए वरदान बना सोशल मीडिया। और मैं अपनी विपक्षी वक्ताओं से पूछना चाहूँगी कि क्या पहले रेप जैसे केसेस नहीं होते थे? सोशल मीडिया के आने के पहले होते थे। तो जनाब, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी मानसिकता पे ध्यान दीजिए। अगर आप सब्जी काटने के चाकू से अपनी उंगली काटेंगे तो दोष चाकू का नहीं, दोष आपकी और आपकी मानसिकता का है। तो जनाब, अपनी मानसिकता सही करिए, फिर सोशल मीडिया का प्रयोग करिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। समझिएगा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी वो आईना साफ करता रहा। धन्यवाद। जितने लोग भी डिबेट में हिस्सा लिए हैं, पक्ष विपक्ष और उनके टीम लीडर, वो इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद उनके रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम है, तो वो अभी जाएंगे नहीं और तब तक रिफ्रेशमेंट लेंगे, तब तक जो है वो इनका निर्णय भी आ चुका होगा। तो अब सेकंड लास्ट पक्ष के लिए सेकंड लास्ट नाम है अम्मार याजदानी। हैं अम्मार याजदानी, आ जाइए। बूढ़ी हो गई है नन्ही आंखें, आ गए हैं चश्मों के दौर। बूढ़ी हो गई है नन्ही आंखें, आ गए हैं चश्मों के दौर। डब्बे में बंद हैं खेल खिलौने, चुप हैं वो बचपन के शोर। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक, लेकिन वो तो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें क्या चुनना है। हमें कौवे की तरह नहीं, हमें हंस की तरह बनना है, क्योंकि कौवा अच्छाई में भी गंध देता है और हंस गंदगी से भी मोती चुन लेता है। उपस्थित अतिथिगण, शिक्षा मंडल तथा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो विषय है सोशल मीडिया, छात्रों के व्यक्तित्व विकास में बाधक के विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना तमन्ना बनकर ही रह जाती है, कि सरफरोशी की तमन्ना तमन्ना बनकर ही रह जाती है। 3 तलाक लिखकर तलाक की रस्म भी यहाँ ऑनलाइन हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया छात्रों के व्यक्तित्व विकास में बाधक इसलिए है क्योंकि इसकी लत छात्रों में सबसे ज़्यादा लगती है। यह छात्रों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। छात्रों का जीवन, उनका पढ़ाई सब दांव पर लग जाता है। वह पढ़ाई से मन चुराने लगते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम छात्रों को सबसे ज़्यादा भटकाता है। अध्यक्ष महोदय, आजकल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2008 से पहले गैंग रेप जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन वही वर्ष 2008 के बाद हमें लगभग रोज देखने को मिलते हैं। गैंग रेप का कॉन्सेप्ट अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका है और मुझे नहीं लगता कि किसी माँ बाप ने अपने बेटे को यह बात बताया होगा कि गैंग रेप क्या होता है। यह गैंग रेप उसी सोशल मीडिया की देन है जिसकी वेबसाइट पर बच्चे गंदे वीडियोस देखकर बड़े हो रहे हैं। और तो और महोदय, सोशल मीडिया अपनी प्रचंड दौर से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जा रही है ऑलमोस्ट 90% रॉन्ग होती है। और मैं बताना चाहूँगा कि रास्ते में चलता हुआ जो इंसान कुत्ते के भौंकने से डर जाता है, वही व्हाट्सएप पर पाकिस्तान को धमकाते हुए नजर आता है। जिसने आज तक अपने मोहल्ले में गिल्ली डंडे का खेल नहीं जीता, वह फेसबुक पर विराट कोहली को यह बात बताता हुआ नजर आता है कि उसे क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए। मान्यवर, मैं बात करना चाहूँगा 2009 की उसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में टोटल 297 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गई थी जिन पर हिंसा हुई थी, लेकिन वही वर्ष 2009 की रिपोर्ट के अनुसार वो घटनाएं बढ़कर 300 से पार चली गई।
और तो और ठीक उसी के 8 वर्ष बाद यह घटनाएं बढ़कर 12,797 हो गई, जिसमें 5600 तो सिर्फ इस बात से थी कि किसी ने किसी के धर्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। और तो और महोदय, सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। यह फेक न्यूज और हेट स्पीच को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और मैं बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के जरिए एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है, जिससे कितने विद्यार्थियों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और तो और यह हमारी समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि माना मेरे प्रतिपक्षी मित्रों के दांत बड़े जहरीले हैं, माना मेरे प्रतिपक्षी मित्रों के दांत बड़े जहरीले हैं, लेकिन हमको भी सांपों का मंत्र अच्छी तरह से आता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद तारिक। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। बिरादरान मिल्लत, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ गुज़िश्ता कल से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जिसमें मेरा मौज़ूए सुख़न है सोशल मीडिया तलबा की शख्सियत के इर्तिका में रुकावट। अल्लाह ताला ने इंसान को फ़िक्र नज़र और शऊर व आगाही से बहरवर किया है। इसी सिफ़त इल्म और ज्ञान की शक्ति से इंसान दुनिया की सारी मखलूक़ात पर लायक व फ़ायक है। आज जबकि चहारदाग के आलम में मुआसलती निज़ाम की रंगारंगी है, हर मैदान में रोज़ अफजू तरक्याती मनासिल तय हो रही हैं। इसी का नतीजा है कि तवील तरीन मसाफ़तें सिमट कर रह गई हैं। एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म की दूरी चंद घंटों में तय की जा रही हैं। ये सब महज़ अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने ईश्वर के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए, व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़िए, या यूट्यूब के किसी चैनल के ज़रिए पढ़िए, या फेसबुक पर पढ़िए, इसकी कोई कैद नहीं, ये आपका हक है। आप जिस तरह चाहे पढ़ें। हमारे बाज़ भाइयों ने कहा, बाज़ मित्रों ने ये कहा कि सोशल मीडिया तलबा की शख्सियत के इर्तिका में रुकावट है। उन्हें याद रखना चाहिए कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक मुस्बत एक मनफी। ये आपका नज़रिया है, आपने मनफी को ले लिया, मुस्बत को छोड़ दिया, या आपकी दयानतदारी नहीं है, बल्कि आपको दयानतदारी के साथ फैसला करना चाहिए। बिरादरान मिल्लत, जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं वो सोशल मीडिया का दौर कहलाता है। आज कदम कदम पर सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी ईजादात से तलबा, आज जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं वह सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। आज कदम कदम पर सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी ईजादात से तलबा खातिर खा मुस्तफ़िद हो रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का निज़ाम एक ग्लोबल विलेज की हैसियत रखता है। इस वक्त पूरी दुनिया तालीम व ताल्लुम, दर्स व तदरीस, बहस व तहकीक और रिसर्च में अपना जलवा बिखेर रहा है। इसकी इफ़ादियत व मानियत का कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। आज तलबा अज़ीज़ खातिर खा सोशल मीडिया से मुस्तफ़िद हो रहे हैं। यूरोप के तालीमी इदारों में तलबा सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत से तरक्यात हासिल कर रहे हैं। यह महफिल जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सजी है, अगर उस दौर में भी सोशल मीडिया का वजूद होता तो शायद कि लोग इससे फ़ायदा उठाते और बबांगे दोहल इस्लाम की इशाअत के लिए, हर चीज़ को बयान करने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा।
किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगा से बाब होगा। जिन्होंने सोशल मीडिया को बुरा कहा कभी तो उनका हिसाब होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इस अभिव्यक्ति के बाद पक्ष की तरफ से आखिरी प्रतिभागी हैं हसन उमर। आप पक्ष में हैं, वहां बैठे थे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पर जलवा अफरोज़ मेहमानान निज़ाम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए असातिज़ा कराम और हकम साहिबान, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमारे आयान भाई ने कहा कि ये एक अफवाह है कि सोशल मीडिया तलबा की शख्सियत के इर्तिक़ा में रुकावट है, लेकिन ये हकीकत है। और एक बहन ने कहा कि बचपन में ही या दूध पीते बच्चे सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन दूध पीते बच्चों को तो फ़ोन दिया ही नहीं जाता, और वो उनको फ़ोन दिया जाता है तो इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया तलबा की शख्सियत के इर्तिक़ा में रुकावट ही है। इस बात से किसी को इनकार नहीं कि सोशल मीडिया तलबा की शख्सियत के इर्तिक़ा में मुफीद नहीं, बल्कि इसमें तलबा के लिए सहूलत है, नक़्ल हमल हो या रास्ते की उलझनें हों, इन सब चीज़ों में तलबा को सहूलत मैसर है। लेकिन अगर ये बात की जाए कि सिर्फ़ सोशल मीडिया तलबा की शख्सियत के इर्तिक़ा में रुकावट नहीं है, तो ये कोई जवाब नहीं है, बल्कि रिवायती तालीम और सोशल मीडिया दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। सोशल मीडिया को सिर्फ लेकर चलेंगे तो इससे समाज बिगड़ता चला जाएगा, लोग बिगड़ते चले जाएंगे। रिवायती तालीम से तलबा अपने असातिज़ा को देखते हैं, उनके किरदार को देखते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, माँ बाप से अलहदा होकर सोचने समझने की सलाहियत पैदा करते हैं, अपने मसाइल, अपने मुश्किलात और अपनी मुसीबतों को दूर करने और उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं, अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक देखने के लिए ख़ुद फिक्र करते हैं। किताबों से दिलचस्पी बढ़ती है, किताबों से मोहब्बत होती है, लेकिन ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर मैसर नहीं। जाहिर सी बात है, कहाँ से मैसर होंगी जब सोशल मीडिया पे असातिज़ा ही नहीं होंगे, उस तरह उनसे मुलाकात ही नहीं होगी, उनका रिश्ता बनेगा ही नहीं, उस तरह दूर से उनसे रवाबित होंगे, तो ये सब चीज़ें मैसर नहीं होंगी। और इंसान तो एक समाजी हैवान है, उसे जिस तरह खाना पानी और रोटी की ज़रूरत है, उसी तरह असातिज़ा की, बिला वास्ता लोगों की मोहब्बत की, स्टूडेंट्स की, साथियों की, उनसे हंसी मजाक और खेल कूद की ज़रूरत है। वो उनके साथ अपने तजर्बात शेयर करता है, उनकी अच्छी बातों को लेता है और उनकी बुरी आदतों को छोड़ता है, और ये सब सोशल मीडिया में मैसर नहीं। इसलिए सोशल मीडिया को अगर ये बात कही जाए कि सोशल मीडिया ही सिर्फ तलबा की शख्सियत के इर्तिक़ा में कारगर है, तो ये बात गलत है। सोशल मीडिया से की वजह से किताब से दूरी हो जाती है। व्हाट्सएप, लड़का बैठा रहता है, ऐसे देखता रहेगा, अब मैसेज आया, अब मैसेज आया, अब मैसेज आया, इसमें वक्त का ज़ाया होता है। और अगर बिला वास्ता मुलाकात होती है तो उसमें गुफ्तगू होती है, एक तवज्जो मरकूज़ होती है, उससे गुफ्तगू होती है, उसका एक नतीजा निकलता है और बात ख़त्म हो जाती है, आदमी दूसरे काम भी करता है। इसी तरह शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स देखता है, एक के बाद एक उठाता जाता है कि अब रखूँगा, फिर उठाता है, अब रखूँगा, बस एक देख लेता हूँ, रख दूँगा। कभी ऐसे सेल्फी लेता है, फ़ोटो खींचता है, उसको ऐसे करके देखेगा, एक बार नज़र हटाएगा, ठीक है अच्छा है, फिर दोबारा ऐसे देखेगा, फिर कहेगा इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, फिर कुछ बढ़ाएगा उसमें, फिर तीसरी बार देखेगा, कहेगा थोड़ी सी क्वालिटी की कमी है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है, उसके बाद फिर उसमें इजाफा करेगा। यानी मिट्टी का बना हुआ इंसान आज फ़िल्टर की खूबसूरती पर गुरूर कर रहा है। सोशल मीडिया हद दर्जे नुकसानदेह अगर उसका सिर्फ एक हल निकाला जाए, और जैसा कि सर ने कहा था, मेहमान खुसूसी थे कि हर चीज़ की एक हद होती है, तो हमें हद में रहकर हर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और सर ने कहा था कि दोनों रुख इख्तियार करने चाहिए, यानी दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। और अगर जो लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया ही वाहिद हल है तो और रिवायती तालीम को पसे पुश डाल देना चाहते हैं, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि ज़माना जानता है किसका दामन चाक कितना है,
ज़माना जानता है किसका दामन चाक कितना है, तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Now, Abdullah Abrar. Abdullah Abrar, say penultimate participant. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। Respected judges and dear audience, now my friend was saying social media is a hindrance in the personality development of students, but I am not agree for this thought, and I say social media is not a hindrance in the personality development of students. Dear brothers, no doubt social media is not in any way a hindrance in the personality development of students. It has hundreds of advantages in their overall development, along with educational ones and others. Social media is a powerful tool to gain knowledge, share information, connect with people, exchange ideas, share experiences, ideas, opinions, and new experiments. Social media platforms play an effective role in shaping and forming students in relation to modern challenges and threats. They help them make them future leaders. They help them overcome the fears, anxieties, and worries about classes and teachers by providing solutions to their education-related problems, unsolved questions, sums, figures, and designs. Dear brothers, though these platforms, which are also known as social networking accounts, as they promote social values and connection, they provide opportunities to connect with people and share content. Therefore, it can be said that they are an integral part of our life in general, and for students, much crucial in particular. Brothers, those students who are serious and sincere in their learning, it is no way carries disadvantages. People who always claim that social media has many potential drawbacks should acknowledge that if a student is serious, nothing can harm him. And if a student is not serious and has already cultivated many bad habits before he gets access to multimedia mobile phones, nothing can stop him from spoiling himself or herself. Social media cannot be blamed for his or her being spoiled sport. Dear brothers, there are many advantages of social media, like number one, they enhance learning opportunities. Students can have access to lots of educational resources and platforms. Students can have access to lots of educational resources and platforms. They provide opportunities to connect with people and share content. Like in Arabic, there is Al Jazeera e-learning and Al Mu'jam Al Arabi Al Jami'. And for English, there are BBC English Learning and Cambly. And for Urdu, there are sites like Rekhta, Uruz, etc. And for cracking competitive exams, there are platforms in India like Unacademy, Physics Wala, Byju's classes, etc. Expanding their learning beyond traditional classrooms, students can share study material through social networking sites as like WhatsApp, Facebook, Telegram, and Instagram, etc. Number two, creative expression and talent exploration. Social media provide a platform for students to express themselves through photos, blogs, articles, and videos, and more fostering creativity and allowing them to explore and showcase their talents. Number three, global awareness and information. Social media serve as a valuable source for students to stay informed about global matters and universe. Number four, social media help remove the fear of classrooms by making learning more fun and interactive. Number five, when usedly, social media become a friendly source for getting advice from peers. Each social media platform has its own features and characteristics.
So we students must be choosy regarding them and must have to select concerning social media platform that is much beneficial and relevant for us. It means that they should be used with discretion. In conclusion, while social media has many advantages, it is much necessary to be aware of the distraction it might create if we use it discreetly, and also in the guidance of our parents and teachers and also sensible peers. It will make and shape us not only educated and qualified, but also faithful and aware citizen who will help further make India and the world a peaceful place to live in. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now, dear audience, we have come to this last candidate, last participant, Rashifa Khatun. Please come to speak against the motion. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्मानित मंच, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष सोशल मीडिया छात्रों के विकास में बाधक विपक्ष के अधिवक्ता के रूप में मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। महोदय जी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है कि वो संप्रेषण को बेहतर बनाए। सोशल मीडिया न केवल संप्रेषण का माध्यम है, अपितु ये विषय के अंतर्गत शब्द सर्वांगीण विकास के साथ ही आयामों को स्पष्ट भी करता है, जैसे रचनात्मकता, कौशलता, मौलिक अभिव्यक्ति, भागीदारी, व्यक्तित्व विकास व अंतर्व्यक्तिक संबंधों के सुधार के साथ साथ देश दुनिया की जानकारी का माध्यम एवं अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की आज़ादी का माध्यम हुई। जिस थाली में खाना उसी में छेद कर देना, ये कहावत तो कई बार सुनी है हमने कि जिस थाली में खाना उसी में छेद कर देना, ये कहावत तो कई बार सुनी है हमने, लेकिन ये कहावत मेरे पक्षी मित्रों पर बिल्कुल सही बैठती है। महोदय जी, भारतीय मौलिक संसार में जहाँ कहीं भी कल्याणकारी विचार उत्पन्न हो, उसे अपनी ओर आकर्षित करें। सोशल मीडिया उन तमाम दिशाओं से उन कल्याणकारी विचारों को हमारी ओर लेकर आता है। संस्कृत के सुभाषितानी वचनों में कहा गया है, अयम निजापरो वेति गण लघुचेतम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। हमारे मस्तिष्क को खुला रखकर एक व्यापक विश्व द्वारा प्रदान कर हमारे संस्कृत वैदोषिक मानव सूत्रों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की सुनवाई हो। तथा कोरोना के द्वारा जब देखें तो कोरोना काल में ही जब कोरोना के द्वारा जब संसार कोरोना महामारी के ताजदी में त्रस्त था, तो सोशल मीडिया ही केवल वो माध्यम था कि एक अवसाद भरी में भी हमारी प्रेरणा और भलाई का काम कर रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक लेख डेमोक्रेसी इंटेंस के अनुसार यह न केवल संप्रेषण का माध्यम है, अपितु ये लोकतंत्र जवाबदेता के बीच संबंध भी स्थापित कर रहा था और इसका सीधा प्रभाव चुनाव पर भी देखने को मिलता है। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक की बढ़ती लोकप्रियता और चुनाव में जीतने का मूल कारण सोशल मीडिया ही रहा है। और जो मेरे पक्षी मित्र सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन का माध्यम बताते हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि ये मनोरंजन का माध्यम नहीं, अमूर्त प्रमोद का माध्यम ही नहीं, बल्कि ये युवाओं की सहयोगी में भागीदारी का भी एक माध्यम बनता है। जैसे कि शॉर्टकट में प्रसिद्धि पाना हो, राजनीतिक सक्रिय भागीदारी या व्यवसाय के विस्तार से लेकर विज्ञापनों के प्रचार तक, या मोदी जी के मन की बात से लेकर संदीप माहेश्वरी जी के मोटिवेशनल वीडियो तक, निर्भया के लिए जस्टिस की मांग हो या रानू मंडल का रेलवे स्टेशन से लेकर बॉलीवुड ग्लैमर तक की यात्रा सोशल मीडिया के जरिए ही तय पाई है। वो युवा अपने गांव में बैठा वहां पप्पू भी दिल्ली तथा जयपुर में चल रही ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा अपने घर पर भी ले सकता है। वो युवा जो समाज में अपनी पहचान ढूंढना चाहता है, हाशिए पे खड़े वे लोग जो समाज के मुख्य धारा में आना चाहते हैं, वे गुदड़ी के लाल जिन्हें मंच महत्व व मौका न मिल पाने के कारण वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते, उनके लिए वरदान है सोशल मीडिया। और आए दिन में जो पेपर लीक होने की घटना के मामले दिखाई पड़ते हैं, उन्हें भी उजागर करने का श्रेय सोशल मीडिया को ही जाता है, वरना तो वो वाली ही बात होती कि जंगल में मोर नाचा पर देखा किसने। सम्मानित मंच, निर्णायक मंडल, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पक्षी मित्रों से ये कहना चाहती हूँ कि आपने अभी जो तत्वों के आंकड़े पेश किए हैं वो कहाँ से सीखी हैं? वो भी तो कोई सोशल ऐप, सोशल मीडिया या सोशल इंटरनेट के से ही तो प्रस्तुत की हैं। और क्या आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी सोशल ऐप का उपयोग नहीं करते हैं? महोदय जी, खास बात तो ये है कि हमारे पक्षी मित्रों के पास कहने को तो ज़्यादा तर्क है नहीं, इसलिए वे तीन बातें मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, अलगाववाद व आतंकवाद को तोड़ मरोड़ प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारे श्रोताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी किसी पक्षी साथी ने कहा कि गैंग रेप और बलात्कार जैसे शब्द का प्रचलन सोशल मीडिया के आने से हुआ है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या सोशल मीडिया के आने से पहले गैंग रेप और बलात्कार जैसी घटना नहीं होती थी?
सारी घटनाएं सोशल मीडिया के आने से पहले नहीं होती थी। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया केवल एक माध्यम है और माध्यम अच्छा या बुरा नहीं होता, माध्यम केवल माध्यम होता है। जिस प्रकार संस्कृत के हितोपदेश में बुद्धिमान व्यक्ति में नीच शील विवेक का गुण बताया गया है, जिस प्रकार हंस और पानी दूध की आपसी मिलावट में पानी को दूध को ग्रहण कर पानी को पीछे छोड़ देता है, उसी प्रकार से सोशल मीडिया से अपनी उपयोगिता और उपादेयता वाली चीजें ग्रहण कर लो और बाकी को पीछे छोड़ दो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या स्वच्छ भारत जैसे राष्ट्रव्यापी अभियान, उनका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के जरिए से हुआ था और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी अपनी योजनाओं का प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से ही करना चाहते हैं। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक बेहतर मार्गदर्शन, सरकारी विनियम पर सुधार करके इसका समन्वित एवं संतुलित उपयोग सोशल मीडिया युवकों के सर्वांगीण विकास में सहायक बन सकता है। महोदय जी, बस अपनी बात खत्म करते हुए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि कोई कितना ही कड़वा क्यों ना बोले, अपने आप को शांत रखना। कोई कितना ही कड़वा क्यों ना बोले, अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुंदर को नहीं सुखा सकती। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निर्णायक मंडल का, जिन्होंने एक ही मौजू पे पिछले 6 घंटे से बातें सुनी और उसमें उन्होंने तार्किक रूप से अंक दिए होंगे। निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं और धन्यवाद उनका जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। एक जोरदार तालियां उनके स्वागत के लिए। और इस तरह से ये डिबेट का प्रोग्राम समाप्त हुआ। आप सभी तलबा को भी धन्यवाद, जिन्होंने बड़े इत्मीनान बख्श तरीके से इस डिबेट कार्यक्रम का आनंद लिया। बहुत ही सुंदर विषय यहाँ पर दिया गया था, सोशल मीडिया छात्रों के व्यक्तित्व विकास में बाधक है या नहीं। बाधक है ये पक्ष था, बाधक नहीं है ये विपक्ष था और भिन्न भिन्न तर्कों के माध्यम से सभी छात्रों ने अपने अपने अभिव्यक्ति प्रस्तुत की और इन अभिव्यक्तियों में हमें बहुत सारी अन्य तत्वों की भी जानकारी हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। विद्वता अनुभव नहीं, विद्वता समय मांगती है और ये समय ऐसा है अनुभव लेने का है। इन तर्कों से आपके मस्तिष्क की जो विचारधारा है उसमें भी परिवर्तन हुआ होगा कि किसी भी चीज़ का उपयोग अति नहीं होना चाहिए और हमारे निर्णय क्षमता इसमें बढ़ोतरी हुई है निश्चित रूप से। तो इसके लिए हम आभारी हैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले अपनी सीरत कमेटी का। और एक सबसे ज़रूरी ऐलान है, जो बैरूनी टीमें आई हुई हैं, बाहर की टीमें आई हुई हैं, उनके टीम लीडर से ये गुजारिश है कि वो आकर जनाब नजमुल हसन साहब से राब्ता कायम कर लें। लाइब्रेरी में हैं और अपने आने जाने का खर्चा ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से ये कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त हुआ। अब जो भी डिबेट में हिस्सा लिए हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं 19 और 20 40 और उनके टीम लीडर, उनसे ये गुजारिश है कि ये बगल में 3 नंबर कमरा है, अपना रिफ्रेशमेंट ले लेंगे और उसके बाद तब तक निर्णय आ जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा, फिर हम जो है आपको जाने की इजाज़त देंगे। बताया जाएगा कि ट्रॉफ़ी आज शाम बताया भी गया है कि ट्रॉफ़ी शाम मगरिब के बाद 5:30 बजे समापन समारोह पे दी जाएगी।